Hello student, I am your physics mentor Nitesh Kumar and you are watching Drona Academy e-learning series. Today I am going to discuss projectile motion and in this lecture I am going to cover each and every parts of projectile motion. So after watching this you can solve any question of IIT JEE as well as NEET exams. Okay students, so in this first I am going to start with the basics like projection on horizontal plane, ground to ground projection. Then after I will discuss from tower on inclined plane. Every case I am going to cover in this one lecture. Okay students, so now first with the basic I am going to start. One most important thing, student, don't try to remember, don't try to just learn the formula, try to learn the concept. And if you will understand the concept, you can solve any question. But if you are learning the formula, because that's given in a maximum book and our 95% teachers are also teaching that same formula, okay, then you can't solve the question. You can't solve all type of question. Okay, that formula is for the specific cases. Okay students, so better try to understand the concept. Okay student, so now the first basic case I am going to take here. So this one is the horizontal plane, and from this horizontal plane I am projecting a body with angle theta from horizontal. What will happen? It will move like this. Now student, again you have to stick with the one concept like the projection point is from origin. So here also you have to assume this projection point is origin, okay, and this is the positive y-axis and this one is the positive x-axis. Whatever you are going to measure below this horizontal direction, that's a negative, and here behind this is also negative. It means what? You are projecting from origin. Okay student, now like here I am projecting this particle with the speed of u. Initial speed of this particle is u. So first thing what you have to do, you have to take the component along a x direction and along y direction. Try to understand, along y direction. Now student, along x direction if you are taking component, what you can write here? It's a u cos theta. It's very important student. And here this one is the u sin theta. And this phenomena is actually happening under gravity. So acceleration due to gravity everywhere is in downward direction. And whatever in upward direction, that's you are considering positive, and what are the in downward direction, you have to consider negative. Okay student, now first important thing I am going to write here like uy, initial velocity or effective initial velocity along y axis is what? Here it's a u sin theta. Okay, u sin theta. Acceleration along y direction, I'm just writing the magnitude here, so it's a g, and you have to write with the sign, so you can write here minus g. Okay student, now what you have to find here, sometime in question you will find you have to calculate the maximum height achieved by the ball. So look at this ball is moving along this path, so maximum height is what? This one. So how to find the maximum height achieved by the ball? This is the maximum height, h max. Now student, h max, at maximum height, ball having just horizontal component of velocity, is it or not? Here in this direction, and that is the same as this one, ux. And what is this? It's a u cos theta. Why I am writing that's a u cos theta? Why it's not changing? Because there is no acceleration along horizontal direction. Try to understand, there is no acceleration, we having just acceleration along a vertical direction, there is no acceleration along a horizontal direction, so that's why it's a constant. And at maximum point what you will find, the v equal to 0. Here vx you are writing, so vy what you will get at 0. At maximum point what you will find, the vy is 0. Why this vy is 0 student?
because this acceleration due to gravity actually decreasing the velocity along the y-axis. Try to understand. The speed here, initial speed of this ball is given along y-axis is u sin theta, okay, and with the time pass it's continuously decreasing, and at the maximum height the speed in vertical direction is 0. Okay student, I suppose you all understand. Now this is the actually concept, okay, and using this concept I am going to calculate everything, like what is the value of h max, what will be the range is this one, student, it's a range, okay. So we will calculate this range, time of flight or maximum time taken by ball to achieve the maximum height. So here I am writing that is the T max. T max is what? Time taken by ball to achieve maximum height. And what you have to calculate? Time of flight. मतलब जितने देर तक ये उड़ रहा है कितनी देर तक ये उड़ेगा, है ना. So time of flight you have to calculate. So what you have to actually calculate? Range, time of flight, maximum height achieved, time taken by ball to achieve the maximum. These questions you will find, okay. So now how to calculate these quantities? It's very simple. Till now we already learned that equation of motion, 3 equation of motion, and now I am going to use that 3 equation of motion on the explanation of all these things. Okay students, so what you have to learn actually, the 3 equation of motion. I suppose you all know that 3 equation of motion. First is what? V equal to u plus at. Try to understand. Second is what? S equal to ut plus half at square. And third one is what? The v square is equal to u square plus 2as. Okay. And the last formula you have to learn in this whole kinematics is just this 3 formula, student. Other than this 3 formula, you don't need to remember the formula of time of flight and maximum height formula, range formula. Either it's on inclined plane, either you are projecting from a tower or horizontal plane, you are projecting on a horizontal plane. In any case, you don't need to remember any other formula. You have to just apply this formula. So 2 things required: the basic concepts of vector and the 3 formula, 3 equation of motion for projectile motion. Okay student, now I am going to first calculate what? Time of flight. Before calculating the time of flight, first I am going to calculate time taken by a ball to achieve the maximum height. Look at this, how we can calculate time taken by ball to achieve a maximum height. So here at maximum height Vy is 0. Which formula you have to apply? You have to use the formula V equal to u plus at. But you have to apply this formula along vertical direction. That's a y here. That's why I am writing here Vy equal to uy plus ayt. Try to understand, student. Now Vy, try to understand, Vy is at maximum height because we have to calculate T max. The maximum height is Vy is 0. So what you will put here? 0. Uy already here we written. So it's a u sin theta. Try to understand. U sin theta minus, why I am writing minus? Because I am going to put the value of ay, that's a minus g. So here I am writing minus g, and this is a T max, or time taken by ball to achieve maximum height. Now from here you can easily calculate the value of T max, that's the u sin theta divided by g. This is the student formula for time taken by ball to achieve the maximum height. Is this time of flight? No, it's a half of time of flight. Look at this. In this path, it just covered the half path. Now the rest is half path. So what you can say? Time of flight, if you just want to calculate, you can also write T2 into T max. And it's a u sin theta divided by z, and if you will multiply it with the 2, you will get the formula of time of flight. Otherwise, look at this. The effective displacement in this whole process is what? 0. Try to understand. यहाँ से उड़ा
और यहाँ पे पहुंच गया. Finally the ball is at this point. So effective displacement is what? 0 along vertical direction. So if you will apply this formula, Sy is equal to Uyt plus Ayt square by 2. So which formula? S equal to Ut plus half it square I am applying along y direction, along vertical direction. So effective displacement is what, student? 0. So here what we can write? 0 is equal to Uy, it's written here, U sin theta into T. Effective displacement is 0 when? Time of flight. So here what you will write? T, capital T. We are denoting time of flight by capital T minus y, because I am going to take z here. So g into time of flight square divided by 2. Now student, like if you will solve this, what you will get? Now this square will cancel out this t, is it or not? So from here what you will get? 2 this time. So time of flight t equal to what you will get? 2 into u sin theta divided by g. This is the formula. So this is also one method to calculate the time of flight. Okay, so using any method, this is the first method, this one is the second method. Using any method you can calculate the time of flight. Okay student, now I am going to discuss the how to calculate maximum height. This one, how to calculate this h max. Which formula we have to use? V square equal to u square plus 2as. So I am writing here the formula we have to use, v square, again along y direction we are applying. So vy square equal to uy square plus 2ay into s. So which formula we are applying is this one. Now vy at maximum height is 0, so I am writing 0 equal to u sin theta whole square, it means u square sin square theta, minus, because g I am going to put here, so 2 into g, and this is the h max. Try to understand. From here you can easily calculate the h max, student. So value of h max, what you will get? U square sin square theta divided by 2g. This is the formula of h max. Again student, I am telling you, don't try to learn the formula. Look at this, how much confusing these formulas are. Looking like very much similar, just sometimes square or 2 or in division, in multiplication. That's why I am telling you, don't try to learn this formula. किसी को भी नहीं याद करना है formula. जिसने formula याद कर लिया, मैं I am telling you one statement, जिसने भी इस formula को याद कर लिया, वो JEE एडवांस में क्वेश्चन नहीं बना पाता है. Getting my point? So what you have to do, you have to understand the concept. कैसे हम लोग फॉर्मूला का डेराइव कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला ला रहे हैं, ये आपको सीखना है. आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है. बहुत सारे जगह पे टीचर्स भी बताते हैं, बच्चे भी यही करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, कुछ टीचर्स भी याद कर रखे हैं, ठीक है. तो फॉर्मूला आपको कभी नहीं याद करना है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूला, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, नाउ रेंज. रेंज इज व्हाट स्टूडेंट? जितने देर तक ये उड़ रहा है, जितने देर तक ये फ्लाई कर रहा है, उतने ही देर तक तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद u cos थीटा. इज इट और नॉट? बिकॉज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी इज u cos थीटा. तो उतने समय तक ये भाग रहा है इधर की ओर. तो हम लोग रेंज, अगर फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं. रेंज कैपिटल R इक्वल टू व्हाट? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट. सिंपल. और ux का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट्स द u cos थीटा, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर लिया. पुट दैट, यू विल गेट द आंसर. आपको कोई सा भी फॉर्मूला याद करना है नहीं, ठीक है स्टूडेंट. अब देखो हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं. अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे. आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन. Note 10 student. One more thing students, like if you are liking our video, then support us. How you can support? By sharing, subscribe the channel, like the video, okay, and share this video. If you are finding it's useful for you, you can
share this video with your friends. Okay student, now I am going to take an example. That example is what? Like you are projecting a ball from a tower. Very simple example I am going to take. Look at this. Again students, I'm taking this example in unknown form. Okay, so here I am assuming the height of tower is capital H. Okay, and from this tower if you are projecting a ball, that's making angle theta with the horizontal. Okay, and again you have to find same thing, maximum height achieved by the ball, time taken by ball, or time of flight, or range, horizontal range from this tower. Okay, so look at this, the path is like this, is it or not? Path is like this. Maximum height, this one is the maximum height point, and at maximum height the Vy will be 0. So at maximum height what you will find? Just a Vx, and that is the constant. It's a u, if you are assuming it's a u, so here the horizontal direction component is u cos theta, the vertical direction component is u sin theta, is it or not? Here you will just find the vertical component u cos theta, and this is the maximum height, h max, is it or not student? So height of tower given. Range is what student? Range is this one, this is the range student. Okay, and time of flight is what? Time, flying time of ball. यहाँ से आपने इसको ऊपर की ओर फेंका तो देखो ऐसे, जैसे मैंने ऐसे फेंका है ना, तो ये फ्लाई कर रहा है, कितने देर तक ये फ्लाई कर रहा है ये। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ऑन दिस क्वेश्चन आपको सारे फॉर्मूले याद है जो मैंने बताया, सारे फॉर्मूले याद है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो। Why? Because this is not ground to ground. You know the formula for ground to ground, but here the projection is happening from a tower. ये टावर से फेंका गया है, इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो फिर क्या नया फॉर्मूला याद कर ले सर? ये भी तो हो सकता है एक सॉल्यूशन। अभी कितने सारे केसेस लेंगे, आप नीचे से ऊपर बिल्डिंग पर फेंकोगे, बिल्डिंग से ऊपर फेंक रहे हो, फिर किसी इंक्लाइन प्लेन पर फेंकोगे, इंक्लाइन प्लेन में नीचे से फेंकोगे, ऊपर से फेंकोगे, कोई मतलब नहीं बनता याद करने का, है ना? तो आप क्या करो, सिंपल कॉन्सेप्ट सीखो। फिर से देखो, मैं सेम कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे भी सब कुछ कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड दैट एच मैक्स। अच्छा, ये एच मैक्स क्या आपका ग्राउंड से आ जाएगा? आप चाहो तो फॉर्मूला लगा करके वहां पे भी ला सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट दिस एच मैक्स, एंड व्हाट यू विल डू फॉर कैलकुलेटिंग दिस एच मैक्स, एच द हाइट ऑफ टावर प्लस दिस स्मॉल एच मैक्स, दिस इज द कैपिटल एच मैक्स। पहले कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट ही। विच फॉर्मूला वी यूज्ड देयर? द वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, but you have to apply this formula along vertical direction, that's why I'm putting y. Okay student, now at maximum height Vy is 0, Uy is a u sin theta, so I'm writing here u square sin square theta minus y, because acceleration due to gravity always in downward direction, धरती अपने सारी चीज को अपनी तरफ बुलाती है ना, so that's why it's a minus into 2 into z, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2z into small h max. So from here what you will get student, small h max, okay, and if you will add this h, what you will get? The capital H max, maximum height achieved by the ball. Look at this, take one this side, so what you will get? 2z h max is equal to u square sin square theta, ठीक है? आपको एच मैक्स चाहिए, यहां से हटाओ, इधर पुट कर दो 2g, ओके। नाउ दिस इज अ स्मॉल एच मैक्स स्टूडेंट, स्मॉल एच मैक्स, कैपिटल एच मैक्स यू वांट, ऐड कैपिटल एच, दिस इज द कैपिटल एच मैक्स, इज इट और नॉट? तो प्लस एच, दिस इज द आंसर, इज इट और नॉट? ना स्टूडेंट, अब आप लोग में से किसी बच्चे को लग रहा है सर यही तो फॉर्मूला आपने वहां पे भी डेराइव किया था, तो अपन ये निकाल करके एच मैक्स का ऐड कर देंगे, इसके लिए तो ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, वहां पे पता चलेगा, है ना? सो टाइम ऑफ फ्लाइट हाउ यू विल फाइंड?
यूजिंग विच फॉर्मूला हेयर, लुक एट दिस, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, किसी टावर पर था अब गिर गया यहां आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दिस h, एंड अगेन वी हैव टू अप्लाई अ वन कॉन्सेप्ट, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है ना, एक अमिताभ बच्चन का अच्छा सा डायलॉग है, वो डायलॉग यहाँ फिट आता है, तो आप जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन करते हो उसी पॉइंट्स को आपको मानना है ऑरिजिन, इफ इट इज अ ऑरिजिन सो व्हाट एवर बिलो दैट यू हैव टू अज्यूम इट्स अ नेगेटिव, इज इट और नॉट, सो लुक एट दिस हियर, व्हिच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, फर्स्ट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. Look at this friends, I am solving all the question using that basic 3 equation of motion. In this which direction you have to apply, vertical, that's why I am putting here y. Y is what, it's denoting, it's, we are applying this formula along the vertical direction, okay. Sy, the displacement is what, vertical displacement is what, minus h, so here you will put the minus h is equal to uy, u sin theta, positive or negative, positive because it's in upward direction, so you will put the u sin theta. Time of flight we want to calculate because on this, after this flying time the displacement is minus h, so that's why you will put here capital T, we are denoting the time of flight by capital T, so I am writing here capital T minus 1/2 into z is the acceleration due to gravity, okay, into capital T square. Now from here you will get the time of flight, look at this, here it's a minus h, it's a quadratic equation, and I suppose you all know how to solve the quadratic equation, is it or not, so you will solve and you will get the value of t. Again you don't need to remember the any formula, or using that formula, the time of flight formula, you can't calculate this. Getting my point, student? Okay, it's a very simple, and what we are using the basic concepts of equation of motion as well as the basic concepts of direction system, or you can say the vector concept, okay, and we are getting the answer. So this is a quadratic equation in time of flight, answer you will get, maybe you will get the two values of time of flight, one is positive, negative, time is always positive, है ना, सिर्फ कोई मिल गया मूवी को छोड़ के, तो time of flight is always positive, is it or not, because it's a time always positive होना भी चाहिए, है ना, तो आपके यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. नाउ रेंज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेंज, रेंज इज व्हाट, ux इंटू टी, यही फॉर्मूला, आपको फिर से कोई रेंज का फॉर्मूला याद नहीं करना, एंड व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ टी यू विल गेट, पुट हियर, इजीली यू कैन कैलकुलेट, इज इट और नॉट स्टूडेंट्स, सो वेरी सिंपल, ओके. अब आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे u कुछ दे सकता है, एंगल कुछ दे सकता है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप समझ गए. अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ के देखते हैं, ठीक है. थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा स्टूडेंट, क्योंकि आज मैं इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लूँगा, और ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना. बहुत सारे बच्चे को लगता है यहाँ फॉर्मूला याद करना है. अच्छा, नीट के बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि सर आप तो कॉन्सेप्ट से करो, दिस इज़ फॉर द जेईई मेंस और जेईई एडवांस, अपने को तो 1 सेकेंड में करना होता है, तो बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2as, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो. जितने देर में आप फॉर्मूला रिमेंबर करके अच्छा ये फॉर्मूला था लिखोगे, उतनी देर में आप सॉल्व करके आंसर ले आओगे, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग से ज़्यादा हमारा पेन चलता है ठीक है ना. चलो, तो ये सबके लिए ही है, either you are preparing for the NEET exam, either you are preparing for the JEE exam, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए था, ठीक है. अभी हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी जो है सो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल के देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और मैंने जहाँ तक देखा है 2-3 बार तो कम से कम इस 10 साल में अपना नीट ने भी क्वेश्चन पूछा इधर से, है ना, आते ही रहता है. वेरी मोस्ट कॉमन टॉपिक, यू कैन से द कॉमन टिपिकल टॉपिक. सो हेयर वी आर प्रोजेक्टिंग दिस बॉल विद अ थीटा एंगल, व्हाट विल हैपन, ये इसका पाथ है ना, ये इसका पाथ है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग अ जनरल पॉइंट, किसी एक जनरल पॉइंट पे ये बॉल ले लिया था. इन दिस जनरल पॉइंट व्हाट यू विल फाइंड, द वी वाई एंड वी एक्स, दो कंपोनेंट. वी एक्स तो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा इफ इट इज अ यू, सो हेयर यू विल फाइंड इट्स अ यू cos theta, because there is no acceleration along a horizontal direction, so what you will find, the Vx equal to u cos theta always. horizontal direction में कोई भी चेंज नहीं होगा. on vertical direction
हेयर आपका चेंज आप ऑब्जर्व करोगे यूजिंग विच फॉर्मूला यू विल गेट v इक्वल टू यू प्लस एटी अपन कैलकुलेट करेंगे, अभी अपने काम का है नहीं, अभी मैंने सिर्फ ये ले लिया. नाउ इट्स अ u साइन थीटा. अच्छा मुझे पहले ये चीज बताओ, इफ आई एम एज्यूमिंग दिस रेंज अगेन दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द along y axis. प्रोजेक्शन पॉइंट ऑलवेज क्या ले लोगे आप, ओरिजिन और 0,0. नाउ दिस इज द x डिस्टेंस. लुक इफेक्टिव, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां तक मान लिया मैंने x, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख रहा हूं इन द केस ऑफ x एंड y, एंड दिस वन इज y. तो मैं इसको ले लेता हूं यहां से यहां, दिस इज द y. इस पॉइंट के बारे में अपन लिख रहे हैं. चलो अगर मैं बोलूं कि यहां पे पार्टिकल था t सेकेंड के बाद, आफ्टर t सेकेंड आपने देखा, आपने यहां से फेंक दिया और t सेकेंड के बाद पार्टिकल आपका यहां पहुंच चुका था. उसने x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया था, ये था, और अलोंग y एक्सिस से इफेक्टिवनेस था, इफेक्टिव डिस्टेंस कवर था, दैट इज द y. अभी हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे. तो मैं अगर x इक्वल टू आपको पूछूं क्या होगा, यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स अ ux इंटू टी. ये तो निकालना बहुत आसान है. यहां से मैं टाइम का वैल्यू लिख लेता हूं. सो t इक्वल टू व्हाट, x बाय यू एक्स, और आप लिख सकते हो x बाय यू कॉस थीटा. इज इट और नॉट? नाउ y, because we need a relation here in x and y, so I'm writing the formula s equal to ut plus half at square. मैंने आपको क्या बोला, लास्ट फॉर्मूला आपको कैनेमेटिक्स में यूज करना है, याद करना है, दैट इज द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सब उसी पर बेस्ड है. ओके, सो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ओके, एस वाई यहां तक, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है y, मैं इधर पुट कर दूं y, बहुत अच्छे, इज इक्वल टू यू वाई इज अ u sin थीटा, दिस इज द यू वाई, इज इट और नॉट? It's a uy student. So what you will write, uy equal to u sin theta. t यहाँ से रख देता हूँ मैं, x by u cos theta. So here you can write t is what? It's a x by u cos theta. Very simple. Plus मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कितनी बार याद करेंगे हम लोग, है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. माइनस 1/2 इंटू z into t, the value of t again you will write from here. So what you can write, it's a u square divided by x square divided by u square cos square theta. ओके, अब कुछ बुक में क्या किया होता है, ये u को कैंसिल कर लेगा और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो बच्चे को बोला था रट्टा मार लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा. आई सपोज यू ऑल आर एक्सपर्ट इन मैथ्स, सो यू कैन राइट इट्स अ टेन थीटा. यस सर, x पहले लिख लें अच्छा लिखने के लिए, माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. कोई डाउट नहीं है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. आप चाहो तो रट्टा मार लो, किसी किसी बुक में और भी फॉर्म में लिखा रहता है. कैसा लिखा रहता है, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड कर तो यहाँ पे यू स्क्वायर लिखा रहेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहता है. अरे तो वही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है. तो आपको जैसे मन हो वैसे याद कर लो, बड़े काम का चीज़ है ये, है ना, क्योंकि ये जनरल पॉइंट्स के बारे में आपको बताता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ everything I am going to calculate again, time of flight, range, everything I am going to calculate on inclined plane also. Like you are projecting a ball on inclined plane, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, फिर भी देख लेते हैं हम लोग, है ना. इससे सारा कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो जाए इन वन वीडियो, है ना. उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन में कुछ अच्छे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, जिसको जेई और नीट ने पूछ रखा है ऑलरेडी, वैसे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे. ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हियर 2 is left, sorry. This is a 2 now, so 2 is left, put the value of 2 here. Okay students, छूटा तो नहीं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा एक्स टेन थीटा माइनस 1/t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z, इट्स t इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर. ये 2 छूट गया था, मैंने आपको 2 लिख दिया, ठीक है.
Okay students, now I am going to calculate again everything on inclined plane. So look at this student, I suppose you all are familiar with the inclined plane. So here I am assuming the inclined plane first from down to up I am calculating. So this one is the inclined plane. दिस इज द इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये आपका वही हॉरिजॉन्टल है. इस हॉरिजॉन्टल पे एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा रखा हुआ है एंड फ्रॉम हेयर बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन यू आर प्रोजेक्टिंग अ बॉल. ओके, विद द सम एंगल. मैं इस एंगल को थीटा नहीं, इस पर अल्फा ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये कैसा मूव करेगा और यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा. अगेन आपको बोल सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, और क्या बोल सकता है आपको, फाइंड द रेंज अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन. अच्छा, एक बार रेंज अलोंग इंक्लाइन प्लेन नहीं, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोल दिया था, तो आप ये भी कैलकुलेट करने के लिए मान लो आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है. स्मॉल आर. ओके, ये अल्फा ले लिया, इस एंगल को क्या ले ले, बीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो. कुछ मैं यहाँ से यहाँ तक थीटा ले लेता है, इसका एंगल अल्फा ले लेता है, तो थीटा माइनस अल्फा लिखता है. मैं सबसे सिंपल जो मेथड है आपको वो बता रहा हूँ. आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है. अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना. इफ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, यू हैव टू रोटेट द आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमारा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. बट अभी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे मानना है. मतलब देखो, जो नॉर्मल होता था वो ऐसा होता था. दिस वन इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स प्लस y माइनस वाई. बट अब आपको इसको रोटेट करना है और कैसा लिखना है, ऐसा. सो ये जो डायरेक्शन है आपका, दिस वन इज द डायरेक्शन दैट इज द प्लस एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस वन इज द प्लस वाई एक्सिस. तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम को बीटा एंगल से रोटेट कर दिया. जो इंक्लाइन प्लेन का उस बीटा एंगल से रोटेट. आप नहीं भी रोटेट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2-3 बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे सबसे सिंपल मेथड लगा है, मैं उसी सिंपल मेथड से अपने बच्चे को बताता हूँ. ठीक है, कि आप कंफ्यूजन कुछ भी ना हो. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट, वन मोर थिंग, इफ यू आर रोटेटिंग दिस, थोड़ा सा जी के वैल्यू में भी चेंज होगा. पहले तो सिंपल वर्टिकल डायरेक्शन में जी लेते थे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होता था. नाउ लुक एट दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि हम अपने मोशन को तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही ऑब्जर्व करने वाले हैं, है ना. इट मीन्स वी हैव टू चेंज समथिंग. सो व्हाट, लुक एट दिस हेयर, इफ यू आर एज्यूमिंग जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड, ये आपके हिसाब से नहीं चेंज होगा. आपने अपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जी भी रोटेट हो जाएगा. नाउ यू हैव टू टेक द कंपोनेंट एंड यू ऑल नो इफ दिस वन इज द बीटा एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा एंड दिस एंगल इज बीटा. ये एंगल आपका हो जाएगा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस बीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन यू विल फाइंड द जी साइन बीटा. I suppose you all understand. Okay student, now here I am going to write everything, the like important component along x axis and y axis. So if it is a u, so in this direction what you will get, पूरा कचरा हो रहा है, मैं यहीं पर राइट लिखता हूँ. So u x equal to what, u cos alpha. So if you are taking the component of this u along the x axis, that's a u cos alpha. It is positive because it's along the positive x axis. If you are writing u y, what you can write, u sin alpha, and it's also positive because it is along the this. U y is what, along this direction. U x is along this direction. I suppose you all understand. Now here I am going to write the acceleration also. It means a y, acceleration along y axis. So here in this direction is g cos beta, but look at this one is the positive. So here in this direction what you have to do, you have to assume negative. मैंने वो रूल्स नहीं हटाया स्टूडेंट्स. हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है. फ्रॉम वेयर यू आर प्रोजेक्टिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओरिजिन. एट ओरिजिन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज एट ओरिजिन. मैंने वो रूल्स नहीं चेंज किया, फिर से ये ओरिजिन से ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो हेयर ए वाई व्हाट यू कैन राइट, माइनस जी
कॉस बीटा। ओके, ax फिर से पॉजिटिव की तरफ नहीं बट निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो एक्सेलरेशन है। सो अगेन यू विल पुट हियर माइनस ऑफ g sin beta. I suppose you all understand, student. Now these four things is very important, students. Using this concept, now we can calculate everything. First, time of flight. First I am going to calculate, student, time of flight. Time of flight is what? This flying time. अब यहां से उड़ा और यहां जाकर के ये बैठ गया, इसका मतलब क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई अगेन? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. What we are doing? We are applying that second equation of motion along vertical direction. Student, I am not writing here the arrows and all. You can write. You all know that these equations are just valid for the vector quantities only. Okay, student. इतने एक्सपर्ट तो आप लोग हो चुके हो, खासकर मेरे साथ रहते रहते, अच्छा बचपन से ही थे. Okay, so students, so here vertical displacement is zero. अब जो भी जीरो आता है उसको जल्दी पुट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते. नाउ अलोंग वाई एक्सिस इट्स अ u sin अल्फा, है ना, u sin अल्फा पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव. इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट t माइनस बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी along y axis here also negative minus c, so I am writing 1/2 into z cos बीटा, और इसके साथ जो माइनस था उसको मैंने यहाँ रख दिया डायरेक्ट. एंड हेयर व्हाट यू विल गेट? टी स्क्वायर. अब ये स्क्वायर किस चीज को कैंसिल कर देगा? इस टी को. व्हाट यू आर गेटिंग? द वैल्यू ऑफ टी. द वैल्यू ऑफ टी यू विल गेट 2 इंटू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा. अच्छा, तो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर क्या ये फॉर्मूला याद कर ले काम बन जाएगा? नहीं याद करता है. अभी मैंने आपको यहां से यहां दे दिया, पता चला कि यहां से बॉल फेंका, यहां पे एक बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में उसको कैच करना है, फिर तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? आपको फिर से एक दूसरा एंगल लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है. या दो इंक्लाइन प्लेन है, एक से फेंका दूसरे पर गया, कुछ भी पूछ सकता है. तो इसलिए आपको ये बेसिक्स फॉर्मूले जो है लगाने आना चाहिए. ठीक है, ये कोई मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. इसको मैं एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन की तरह, और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप इसको सॉल्व करो. ठीक है, अभी आपको क्या निकालने को आ सकता है? रेंज. अब देखो, रेंज इज दिस वन अलोंग इंक्लाइन प्लेन में कैलकुलेट करो और उसका आप आर निकाल सकते हो. मैं तो आर का पहले ही लिख देता हूँ. आर इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट इफ यू आर राइटिंग हियर द कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू व्हाट? स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. तो आपको स्मॉल आर पूछेगा तो आप कैपिटल आर इंटू कॉस बीटा, बीटा गिवन होगा. इज इट और नॉट? तो ये कैलकुलेट करना तो बच्चों का खेल. अभी हम लोग ये निकाल लेते हैं कैपिटल आर. फिर से आप ये इक्वेशन लगाओ अलोंग एक्स एक्सिस. एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. मैं बार बार इस इक्वेशन को क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ओके, अब देखो कोई बच्चा इस फॉर्मूला को याद रखा है, आप तो फिर से ये फॉर्मूला लिखोगे नहीं, यू विल डायरेक्टली राइट दिस. इसके बाद भी डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है, इसके बाद भी आप इसमें वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आंसर ही लाओगे, है ना. तो टाइम भी नहीं बच रहा है. कुछ बच्चों का सोचना होता है कि सर फॉर्मूला याद रखने से टाइम बच जाएगा, टाइम भी नहीं बचेगा. पहले तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला है, आपके मेमोरी में फॉर्मूला फिट है, आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम है, उसमें से सर्च करोगे अच्छा कौन सा फॉर्मूला, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. समझ में आ रहा? और बहुत ही इजी भी है. लुक एट दिस हियर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हियर अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट? आर. तो हमने यहां पे रख दिया आर. पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यू एक्स इज पॉजिटिव, सो आई एम राइटिंग हियर यू cos what? अल्फा इंटू टी. टी इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही तो ये यहाँ पे जा रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखा. माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि ए एक्स भी निगेटिव है. 1/2 इंटू ए एक्स इज व्हाट? जी साइन बीटा इंटू
t square. Now student, you already calculated time of flight. If you will put the values here, what you will get? Answer. What you will get? Answer. Very simple. Is it or not? तो आप कुछ भी बोलेगा इसे निकाल सकते हो, आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। आपको डायरेक्शन सिस्टम के साथ स्टिक रहो कि जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट्स को ओरिजिन लोगे, उसके बिलो आप कुछ भी मेजर करो, दैट्स अ नेगेटिव। इस डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करो, नेगेटिव। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सिंपल। और आपको कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है और ये फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। अब इस तरह से अगर मैं ले लेता हूं, अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, इन दिस केस यू आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, इधर के ऊपर फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब हम लोग ऊपर से फेंकेंगे नीचे, फिर कैसे होगा? कुछ चीज़ें चेंज होगा, सब कुछ यही रहेगा। कॉन्सेप्ट फिक्स है स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट हमारा कब से फिक्स है? जब हमने ये पढ़ा था, मोशन अलोंग वन डायमेंशन, फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी, तब से हम लोग एक ही डायरेक्शन सिस्टम पे फिक्स है कि जो प्रोजेक्शन पॉइंट है दैट इज प्रोजेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम ओरिजिन। जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वही ओरिजिन है और उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। हमने कोई भी बार बार अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया, सपोर्टिंग अपोजिंग ये वो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे जगह पे इवन टीचर्स लोग भी ये पढ़ाते हैं कि दिस इज द सपोर्टिंग केस, दिस इज द अपोजिंग केस, जी को पॉजिटिव लो, जी को निगेटिव लो, जी को ऐसा करो वो करो, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या चीज के साथ स्टिक रहना है? एक पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट किया गया, दैट इज द ओरिजिन, और बाकी आपको जो आपने मैथ्स में पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको फॉलो करना है, सिंपल। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट फ्रॉम here, this was an inclined plane, थोड़ा अजीब सा बन गया, ओके। एंड इन फ्रॉम हेयर वी आर प्रोजेक्टिंग पार्टिकल, कैसा होगा? खट 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 ऐसा। यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब फिर से आप क्या करना है? इस डायरेक्शन को रोटेट करके इस डायरेक्शन को क्या कर लो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम लो, एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। एकदम प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मानना है, वहाँ से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एंड दिस इज आई एम एज्यूमिंग यू, और ये एंगल फिर से अल्फा लेता हूँ मैं, साइन नहीं चेंज कर रहा हूँ कुछ भी, नोटेशन जो वहाँ लिया था बीटा, ठीक है। अब आपको फिर से अगर रेंज पूछता है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द रेंज आर, टाइम ऑफ फ्लाइट, सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। हेयर इन दिस डायरेक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो यू एक्स इज व्हाट? यू एक्स इज यू cos alpha, u y is what? u sin alpha। अच्छा, यहाँ पे g देखो, g के लिए मैं यहीं पे डायग्राम बनाता हूँ। दिस डायरेक्शन g ऑलवेज डाउनवर्ड में होगा। आपने चेंज किया, आपके हिसाब से g चेंज होने वाला नहीं है एकदम। कुछ बच्चे, अच्छा सर हम g को भी इधर ले लेते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं होगा, आपने यहाँ रोटेट किया, आपको g का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दिस इज द बीटा, दिस वन इज द 90 minus beta, this one is the beta angle, so here you will get the z cos beta, or in this direction you will get the z sin beta, है ना। अच्छा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना करके इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद कर रहे थे, ठीक है, बार बार, और मुझसे ही पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, कोई ट्रिक या कुछ है नहीं? मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तुमने याद ही गलत चीज को किया, वो तो फॉर्मूला ही नहीं है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग देख लो, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ ए एक्स, नाउ स्टूडेंट ए एक्स इज व्हाट? एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज द जी साइन बीटा। वहां पे नेगेटिव था, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। एंड ए वाई इज नेगेटिव स्टूडेंट, बिकॉज दिस वन इज द पॉजिटिव y-x direction and this one is the negative. So here you will add the minus g cos beta. Suppose you all understand. Okay student, now I am going to again calculate time of flight. So time of flight means what? The displacement in our vertical direction is 0. So you will apply the formula sy equal to uy into t, time of flight calculate करना, minus 1/2 z। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा था, चलो पहले प्लस करके आराम से लिख देता हूँ फॉर्मूला, फिर मैं करूँगा हाफ जी टी स्क्वायर। चलो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देखो यहाँ से उड़ा यहाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या है? ये है, इसमें क्या होगा? 0, तो आप यहाँ पर 0 लिखोगे।
इक्वल टू ये कितना लिखोगे, u साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस, क्योंकि ये g फिर से देखो y डायरेक्शन में निगेटिव है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर माइनस, इंटू 1/2 इंटू g कॉस बीटा ना, कॉस बीटा टी स्क्वायर, फिर से ये स्क्वायर ने इस टी को खा गया, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g कॉस बीटा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला, देख लो अच्छे से। हाँ सर यही है ना, कहीं कहीं तो बच्चे याद कर लिए होंगे तो उनको तो पता होगा, इसको इधर लाया मैंने, इसको इधर नीचे ले गया, टी आ गया अपना, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आपसे फिर से पूछ रहा है रेंज का फॉर्मूला, अगेन फॉर कैलकुलेटिंग रेंज यू विल अप्लाई द एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, बार बार आप तो याद हो गया होगा, टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस एक्स इज व्हाट, जब तक ये उड़ रहा है उतनी देर तक ये वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा, है ना, एंड दैट इज द रेंज, सो आई एम राइटिंग रेंज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू एक्स पॉजिटिव, हेयर वी गॉट पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग यू cos अल्फा इंटू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम तक ये उड़ रहा था, इतनी देर तक ये जल रहा है ना, सो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू राइट द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ प्लस आएगा, प्लस क्यों होगा, बिकॉज ए एक्स भी पॉजिटिव है, सो प्लस 1/2 g साइन बीटा, g साइन बीटा इज दिस वन, और इंटू टी स्क्वायर आ गया हमारा। ओके इस पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। मेरा अभी मन था कि मैं 2-3 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा इससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, आपका कोई डाउट्स, कोई क्वेरी होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड टाइम, बाय।